हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ स्तुति तिवारी एंड आई एम योर बायो टीचर। एज यू ऑल नो, मैं अपने चैनल पर आप लोगों को MCQs प्रोवाइड करा रही हूँ। चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेस के MCQ सीरीज़ एंड वीडियोज़ आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। वहाँ आपको सारे इंपॉर्टेंट MCQs मिल जाएंगे जो कि मोस्ट प्रोबेबली आ सकते हैं आपके बोर्ड्स में। सो प्लीज़ डू वॉच इट। ओके बच्चों, मैंने चैप्टर 8 हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस के भी MCQ सीरीज स्टार्ट कर दी है। सो प्लीज़ कीप वॉचिंग। Today in this video I am going to give you main key points to remember MCQs as fill-ups. Okay, and see on the board. So please start writing with me. So shall we start? Okay, first MCQ is salivary amylase also called. So what comes here? Salivary amylase is also called, जल्दी से बताइए, टाइलिन. It is the most important question. ढंग से देखिए, टाइलिन की स्पेलिंग P से स्टार्ट होगी. So PTYALIN. It is also called salivary amylase. Salivary amylase कहाँ से आया? Nutrition in humans, salivary glands. Saliva contains enzyme called salivary amylase. Okay, next, tiny pores present in the epidermis of leaf where gaseous exchange takes place. So tiny pores present in the epidermis of leaf, क्या कहते हैं उसको बच्चों? उसको बोलते हैं स्टोमेटा. You can write as fill-ups, but in your boards you can tick as MCQs. Okay. Next question. Energy currency of life. Energy currency of life, ATP. Quickly we will solve the MCQs. ATP का full form adenosine triphosphate. Clear? Next, full form of ADP. Same, adenosine diphosphate. Okay, so the next, take a screenshot or you can write. Okay, the next MCQ is larynx is also called voice box. larynx को क्या बोलते हैं बच्चों? voice box. ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में आपने पढ़ा होगा larynx. इसको क्या बोलते हैं? voice box. Next is red color pigment present in the blood which helps in transportation of oxygen. ऐसा कौन सा रेड कलर का पिगमेंट है जो हेल्प करता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन? हीमोग्लोबिन. आंसर इज हीमोग्लोबिन. नेक्स्ट, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा इज, आई थिंक mode of nutrition in amoeba is holozoic nutrition. There are two types of nutrition, autotrophic and heterotrophic. Heterotrophic के भी 3 main parts होते हैं बच्चों, saprophytes, parasitic and holozoic nutrition. Saprophytes, the mode of nutrition in which organisms obtain food from dead and decaying matter. इसका example होता है bacteria and fungi. If there is mode of nutrition in amoeba is asking, so the answer is holozoic nutrition. Okay. Parasitic में जो वो न्यूट्रिशन होता है जिसमें ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन करते हैं फूड फ्रॉम अनदर ऑर्गेनिजम्स बट विदाउट किलिंग देम. ओके, सो द एग्जाम्पल मॉस्किटो हो सकता है, टेपवॉर्म हो सकता है. ओके, हॉलोजोइक न्यूट्रिशन में अमीबा इज द एग्जाम्पल एंड ह्यूमंस ऑल्सो. क्लियर? टेक अ स्क्रीनशॉट, अदर यू कैन राइट if you want to write. Okay, the next MCQ is process of obtaining food by amoeba. वो कौन सा प्रोसेस है जिससे फूड ऑब्टेन किया जाता है अमीबा का? दैट इज फेगोसाइटोसिस. फेगोसाइटोसिस. ओके, नेक्स्ट, डैश इज द कॉमन पैसेज ऑफ फूड एंड एयर. आंसर इज pharynx. It is also in human respiratory system. Pharynx is the only passage, common passage of food and air. Next, dash is the largest gland of the body. ये तो आप सब बच्चों को पता ही होगा, liver. The mode of nutrition in fungi, heterotrophic. Okay, nutrition. Clear?
ये समझ में आया आप लोगों को? टेक अ स्क्रीनशॉट एंड यू कैन राइट ऑल्सो. Okay, the next is dash is secreted in the liver and is stored in gallbladder. याद आया बच्चों? लिवर में प्रोड्यूस होता है बाइल जूस एंड बाइल सॉल्ट. बाइल जूस फूड को एल्कलाइन बनाता है एंड बाइल सॉल्ट लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स को ब्रेक करता है छोटे छोटे स्मॉल ग्लोब्यूल्स में, उसको बोलते हैं इमल्सिफिकेशन. सो ये बाइल जूस एंड बाइल सॉल्ट दोनों स्टोर्ड होते हैं गॉल ब्लैडर में. सो द आंसर इज बाइल. ओके, नेक्स्ट. डैश इज द कार्टिलेजिनस फ्लैप विच क्लोजेज द ग्लोटिस टू चेक द एंट्री ऑफ फूड इनटू इट ड्यूरिंग स्वैलोइंग. जब हम खाना निगलते हैं तो वो कौन सा फ्लैप होता है जो क्लोज हो जाता है खाने की एंट्री को चेक करने के लिए? सो द आंसर इज एपिग्लॉटिस. Okay, it's I. Epiglottis. Clear? Next question. Substance absorbed in large intestine. वो कौन सा substance है जो large intestine में सबसे ज़्यादा absorbed होता है? Water. Okay? I hope मैं आपके MCQs clear कर रही होंगी chapter 6 से related. बच्चों ये mid of the chapter है, so ये please आप लोग इसको follow करिए. एंड ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक एक क्लियर पॉइंट आपको समझना है अगर, तो यू कैन गो थ्रू माय वीडियोस. ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, इवन हार्ट का मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है, सो यू कैन वॉच ऑन माय चैनल. सो द नेक्स्ट MCQ इज फूड प्रोडक्ट एज प्राइमरी सबस्ट्रेट फॉर रेस्पिरेशन. फूड प्रोडक्ट को एज अ प्राइमरी सबस्ट्रेट कहा गया है रेस्पिरेशन. सो कौन सा फूड प्रोडक्ट है बच्चों? ये तो सभी को पता होना चाहिए, ग्लूकोज. टू वर्क आउट एंड प्रोडक्ट्स ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन इन ईस्ट. व्हाट आर द एंड प्रोडक्ट्स ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन इन ईस्ट? फर्स्ट इज C2H5OH. व्हाट इज C2H5OH? इट इज इथाइल एल्कोहल. ओके, एंड CO2, कार्बन डाइऑक्साइड. Okay बच्चों? Okay, the next end products of aerobic respiration is. What are the end products of aerobic respiration? क्या होंगे end products aerobic respiration के? सेम, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड ही होगा and next is water. So they are the end products of aerobic and they are the end products of anaerobic. Food product as primary substrate क्या है? Glucose. So you can write. Okay, the next is dash is the anticoagulant used during the process of hemodialysis. आप लोगों ने chapter 6 में hemodialysis पढ़ा होगा. is the last topic I think आप लोग ने देखा होगा. So वो कौन सा anticoagulant है जो process के दौरान use किया जाता है? It is heparin. वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से समझते जाइए. नेक्स्ट, नेम द ऑर्गेनेली सर्व्स द फंक्शन ऑफ एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन इन अमीबा. सो इट इज कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल. ओके, इट इज कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स. इवन यू कैन राइट द स्पेलिंग्स ऑल्सो, क्योंकि बच्चे बायोलॉजी में स्पेलिंग्स बहुत मिस्टेक करते हैं. नेक्स्ट इज एलिवेटेड पार्ट इन बॉयज़ नेक. जब हॉर्मोन्स डेवलप होने लगते हैं बॉयज़ में, उनकी जब एलिवेटेड पार्ट जब बॉयज़ की नेक में दिखने लगता है, एक उभरा हुआ सा पार्ट आपने देखा होगा अपने नेक को छू के, तो उसको क्या बोलते हैं बच्चों? इट इज़ एडम्स एप्पल. इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड NTSC में भी आया था. ओके, सो दीज आर द MCQ सीरीज़ ऑफ चैप्टर 6. ऐसे ही मैं आप लोगों के लिए चैप्टर 8 की सीरीज़ लेके आने वाली हूँ. सो प्लीज़ कीप वॉचिंग द लर्निंग बायोलॉजी and subscribe my channel. Thank you.